नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल गुप्ता एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का छात्र आज अपने साथियों के साथ एमएसपी टॉपिक पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो थोड़ा इसके हम बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो समय था 1964-65 का, जब हमारे देश में सूखा पड़ गया था, जिससे देश की कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई और हमारे देश में लोग भूख से मरने लगे थे। एक भुखमरी वाली सिचुएशन अराइज़ हो गई और उसी समय फिर इसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है उस समय, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज़ करके हमारी कृषि में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, नए-नए प्रयोग किए गए, जिससे कृषि काफ़ी तरह इम्प्रूव हुई। लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी, यानी जितनी फूड की रिक्वायरमेंट थी। उस फूड की रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए किसानों को मोटिवेट करना था और किसानों को मोटिवेट करने के लिए उस समय सरकार के द्वारा एक न्यूनतम मूल्य दिया जाता है और वो न्यूनतम मूल्य एक झा कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है और उसी न्यूनतम मूल्य को हम एमएसपी के नाम से जानते हैं। तो धन्यवाद। अब हम जान लेते हैं कि एमएसपी क्या है, कितने फसलों के ऊपर लगती है। तो इसके बारे में हमारे साथी सौरभ बताएंगे। Thank you, Pranjal. MSP, the term stands for the minimum support price, is the guaranteed amount paid to the farmers when government buys their produce. MSP is based on the recommendation of Commission for Agricultural Cost and Prices, which considers various factors such as cost of production, demand and supply, market price trend, intercrop price parity, etc. Commission for Agricultural Cost and Prices comes under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It came into existence in January 1965. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by our Honorable Prime Minister of India, takes the final decision on the level of MSP. MSP aimed at ensuring the remunerative prices to the farmers for their produce and also encourages them for crop diversification as well. Now, coming on to the crops under the MSP. So, as per the Commission for Agricultural Cost and Prices, recommends MSP for 22 mandated crops and fair and remunerative pricing for sugarcane. So, under 22 mandated crops, we have 14 kharif crops, 6 rabi crops, and 2 other commercial crops as well. अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को एक माइन्यूट डिफरेंस पता हो कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं और राबी क्रॉप्स क्या होते हैं. Kharif crops are also known as the monsoon crops. They are shown in the month of June or July and are harvested in the month of September. So some of the Kharif crops are as follows: rice, maize, millet, sugarcane, ragi, pulses, soybean, groundnuts, etc. On the other hand, Rabi crops or Rabi harvest are also called as a winter crops. They are shown in the month of winter and are harvested in the month of springs in India. Now, some of the Rabi crops are as follows. Rabi crops include wheat, mustard, barley, grams, etc. Now, coming on to the recent updates related to MSP. So, recently the center has announced a hike in the minimum support price for wheat and 5 other Rabi crops for 2024-25 marketing season. The most significant increase has been seen for wheat with rupees 150 per quintal hike, the highest since 2007 and 2008. Wheat is a crucial rabi crop and is the second largest in terms of the area coverage in India and plays a vital role in the economy. Thank you. धन्यवाद सौरभ। तो हम लोगों ने जान लिया कि एमएसपी क्या है और कितने फसलों पे लगती है। थोड़े रिसेंट अपडेट के बारे में भी जाने हमने। अब हम जानते हैं कि एमएसपी के क्या मेथड्स हैं, किस तरह हम एमएसपी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में हमारे साथी अंशुमान सिंह बताएंगे। धन्यवाद प्रांजुल। तो हम देखेंगे कि एमएसपी को फिक्स किस तरीके किया जाता है। जो एमएसपी प्राइसिंग निकलती है वो किस किस बेस पे निकलती है। तो उसके पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसे कि 2004 में एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल फार्मिंग कमीशन, जो कि चेयरमैनशिप ऑफ एम एस स्वामीनाथन के अंडर में थी। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि किस तरीके हम फार्मर के एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करें और उसके बेस पे हम एमएसपी को डिसाइड करें। तो उन्होंने 3 भागों में इस कॉस्टिंग को बांटा था, जिसमें से पहला भाग था A2, दूसरा था A2 प्लस FL, तीसरा था C2। अब A2 में क्या क्या लिया गया था। A2 में उन्होंने लिया था एक बेसिक कॉस्टिंग को, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। अब दूसरी कॉस्टिंग पे हम लोग आते हैं जिसमें कि उन्होंने बताया था कि
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कॉस्टिंग लगती हो किसी भी क्रॉप को पैदा करने में। इसीलिए उन्होंने जो फैमिली के मेंबर लगते हैं किसानों के, उनका भी कुछ वेजेस निकाला और उसको भी उसमें ऐड किया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं A2+FL, यानी फैमिली लेबर की भी जो कॉस्टिंग थी उसको ऐड किया। लेकिन सबसे सही कॉस्टिंग निकली थी हमारी तीसरे भाग में, जिसको कि C2 के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी थी। जैसे कि एक किसान किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता है दूसरी क्रॉप को पैदा करने के लिए, उस कॉस्ट को भी ऐड करना, ये C2 कॉस्टिंग शो करता है। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने ये बोला था कि अगर आप फार्मर के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उसको MSP पे 1.5 गुना ज़्यादा दीजिए, तभी उसके साथ न्याय होगा, यानी उसको रियल उसकी कॉस्टिंग मिल पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये समस्या पहले से ही है कि एग्रीकल्चर पे पहले से इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं कि गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी MSP ज़्यादा देने में। लेकिन एनडीए की सरकार ने 2014 में ये वादा किया कि हम किसानों को MSP 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा के देंगे। फिर उसी 2018 या 19 में जो कि बजट जब लाया गया, तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये बोला कि हम अपने वादा को पूरा करने जा रहे हैं और 1.5 गुना MSP देंगे हम अपने किसानों को। लेकिन उन्होंने ये नहीं कन्फर्म किया कि वो 1.5 गुना किस कॉस्ट पे देंगे, A2 पे देंगे या A2+FL पे देंगे या C2 पे देंगे। और ये उन्होंने जो तब से 1.5 गुना मिलता आ रहा है, वो मिलता आ रहा है हमें A2+FL पे, ना कि C2 पे। और न्याय तभी होगा किसानों के साथ जब हम C2 पे देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अंशुमान। तो हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ें जान ली एमएसपी के बारे में। हम बात करते हैं नीड्स की, कि आखिर नीड क्या है। तो अगर नीड की बात करें तो सबसे पहली अगर बेसिक नीड की बात करें एमएसपी की, तो वो है सेल्फ सफिशिएंट। उस समय हमको फूड में सेल्फ सफिशिएंट होना था, तो इसलिए एमएसपी का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो अगर हम कुछ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम लोग 1980 तक फूड सफिशिएंट हो गए थे, फूड में सफिशिएंट हो गए थे, तो हम क्यों आज भी एमएसपी आज भी हम लोग लगाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका भी एक कारण है। वो कारण है 2013 में एक एक्ट आया था जिसको हम NFSA के नाम से जानते हैं, जिसको हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। और उसमें सरकार वादा लेती है कि हम देश के 80 करोड़ प्लस जनता को कम से कम दाम में फूड ग्रेन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम लोगों ने एमएसपी पे जितनी सारी चीज़ें थी पढ़ ली। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।